side, our leader Rahul Gandhi ji is doing Bharat Jodo Nyay Yatra. That Yatra now reached Gujarat after covering so many states. Started from Manipur, now ending on Mumbai. On March 17th, there will be a Mammoth rally in Mumbai, 17th evening. The Yatra will be culminated on March 17th. We invited all the India Party leaders to attend that Bombay rally. Our Congress President himself is writing a letter and sending an invitation to all of the India Party leaders. During this Yatra, you are all aware of that. We are announcing lot many guarantees and promises to the people of the country. Basically, we announced Kisan Nyay, passing a law granting legal status to MSP in Parliament. This is the biggest demand from the farmer side. Congress Party is committed to fulfill this promise when India is coming back into power. Then, Hissadari Nyaya, a socio-economic caste census to give more meaningful foundation to social empowerment and economic justice in the ownership of the nation's wealth and participation in the government. Yesterday, we announced the UN Nyaya, one of the biggest guarantee and promises relating to the youth of this country. The youth of this country are totally demoralized. The way in which unemployment is peaking in this country. To address that concern, we are very much committed. Congress Party is very much committed. India Coalition is committed. There is Bharti Bharosa, the Congress guarantee that it will create 30 lakhs job in central government according to the published job calendar, which we have done in Karnataka. You know that our Telangana experience. Within these 3 months, we have given 35,000 youths job. Can you imagine that? You can verify. Therefore, whenever we are promising, we are fulfilling that. In Karnataka also done, Telangana also done. Now we are promising that 30 lakhs job will be created in the central government when we come into the power. Pehli Naukri Baki, Congress guarantee a new right to apprenticeship act. Just like Manrega, just like right to information, just like right to food, the right to apprenticeship act is going to be implemented. A private or public sector company to every diploma holder or college graduate below the age of 25. Apprentice will get a 1 lakh per year. That is 8,500 per month. The Congress guarantee is to new laws to ensure the highest standard of integrity and fairness in the conduct of public examination. Now you can see that everywhere leaking the examination is the biggest problem in this country. Our youngsters are lost their trust in these examinations now. We need to rebuild that trust. The Congress Party is giving a new guarantees to ensure the highest standards of integrity and fairness for conducting the examination to prevent the paper leak. Then Congress guarantees to bring legislation to ensure better working conditions and social security for lakhs and lakhs of youth who seek employment every year in the gig economy. The Congress will create minorities. 24. 15 from general category, 24 out of 39 from SC, ST, OBC and minority. 12 people are below 50 years age, under 50 years age. 8 people are between 15 and 60.
61 and 70, 12 people are there. 71 to 76, 7 people are there. This is the age status. 71 to 76. Now I am reading out the names. Chhattisgarh, Jankir Champa SC, Dr. Shivkumar Daharia. Chhattisgarh State, Korba, Mrs. Jyotsna Magans. Chhattisgarh 6, Rajnandgarh, Bhubesh Baghel. Chhattisgarh Durg, Rajendra Sahu. Chhattisgarh Raipur, Vikas Upadhyaya. Chhattisgarh Mahasamud, Tamaruddin Sahu. Tamarध्वज Sahu. Karnataka Bijapur SC, HR Algor. Karnataka Haveri Anand Swami Gaddevara Mats. Anand Swami Gaddevara Mats. कर्नाटका तुमकुर। तो 11 में से 6 सीटों पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है, उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ गई है। कर्नाटका मंड्या वेंकटरामेगौड़ा स्टार चंद्रू। कर्नाटका बेंगलुरु रूरल DK सुरेश। शिमोगा श्रीमती गीता शिवराज कुमार। हासन श्रेयस पटेल। देन केरला कासरगोड राजमोहन उन्नीतान। कण्णूर के सुधाकरन। वडगरा शाफी परम्बिल। वायनाड फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी। AICC की तरफ से पहली लिस्ट आ चुकी है कांग्रेस की और 11 में से 6 आपको मैं बता दूं कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है। दुर्ग से राजेंद्र साहू, रायपुर से विकास उपाध्याय, महासमुंद से ताम्रध्वज साहू, जांजगीर चांपा से शिवकुमार डहरिया और कोरबा से ज्योत्सना महंत और राजनांदगांव से भूपेश बघेल को मैदान में उतारा गया है। और इस वक्त हमारे साथ इनपुट एडिटर जुड़ चुके हैं संजय जी। संजय जी, 11 में से 6 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है, किस तरह के समीकरण साधे गए हैं? बीजेपी के बाद क्या कुछ मॉडिफाई हुआ है इन समीकरणों में? देखिए आकांक्षा, बीजेपी ने तो पहले ही जारी कर दिया था और ये कह दिया था कि उसके पास किस तरह की रणनीति है, साफ साफ सबको बता दिया था। और जातिगत जो समीकरण है उसको ज़रूर साधा गया है। कांग्रेस ने भी बहुत सावधानी से, मैं कहूँ कि इसको बहुत सावधानी से इस बार कांग्रेस ने ये सीटों का वितरण किया है। तो जिस तरह से पहले लगता था कि बहुत एकतरफा कहीं ना हो जाए, खासकर बीजेपी की सूची को देखकर, तो अभी थोड़ा इसमें मंथन कांग्रेस ने किया निश्चित रूप से। और ये जो सूची आई है, इसको कहना चाहिए कि इससे बढ़िया सूची कांग्रेस के पास फिलहाल नहीं हो सकती थी। अभी तक जो कैंडिडेट कांग्रेस के पास हैं, जो लोग हैं प्रत्याशी बनाने लायक जो लोग हैं, उनमें यही नाम ही हो सकते थे अगर सबसे अच्छा नाम चुनने की बात है तो। और सीट भी देखिए, सीट में अगर एक महासमुंद की सीट को छोड़ दिया जाए जहां से ताम्रध्वज साहू को ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती भेजा गया है, हालांकि साहू बहुल इलाका है, उसको देखते हुए एक साहू वोटर्स वहां पे काफ़ी प्रभावी भूमिका निभाते रहे हैं। आपने देखा है लगातार साहू वोटरों की वहां पर किस तरह से चंदूलाल साहू अभी वहां पर हैं। तो साहू वोटर को साधने के लिए ये ताम्रध्वज साहू को भेजा गया। चर्चा ये थी कि धनेंद्र साहू जो अभनपुर से लड़ते रहे हैं उनको भेजा जाए, हालांकि इस बार वो मूड में बिल्कुल नहीं थे क्योंकि विधानसभा अभनपुर में हारने के बाद उनकी इच्छा नहीं थी महासमुंद जाने की। लेकिन पार्टी में चर्चा थी कि शायद धनेंद्र साहू को मनाया जाएगा, लेकिन नहीं मनाया पाए। और ताम्रध्वज साहू को मैं आपको रोकना चाहूंगी, शिव डहरिया की एक्सक्लूसिव प्रतिक्रिया सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। उम्मीदवार के नाम घोषित होने के बाद क्या कह रहे हैं शिव डहरिया? कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची का ऐलान कर दिया है और जांजगीर चांपा सीट से शिव डहरिया को मैदान में उतारने का कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। और इस वक्त कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री शिव डहरिया जी हमारे साथ में मौजूद हैं। शिव जी, बहुत बहुत पहले तो बधाई, आपको शुभकामनाएं। आपका
और जांजगीर चांपा सीट से आपको मैदान में उतारा गया है, आप यहीं से दावेदारी भी कर रहे थे, किस तरह से देख रहे हैं इस बड़ी जिम्मेदारी को? निश्चित रूप से जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है। वैसे तो पूरा छत्तीसगढ़ ही कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन जांजगीर चांपा हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है और इस बार कांग्रेस पार्टी वहाँ से जीत के आएगी। और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि हम मिशन 11 के तहत इस बार 11 की 11 सीट जीतेंगे। पिछली बार भी इस सीट पर जो है बीजेपी को जीत मिली है, इस बार किस तरह की चुनौती से? देखिए, चुनौती हमारी सरकार ने जो बेहतर काम किया है और हमारे नेता आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, आदरणीय खड़गे जी और हमारे प्रदेश के सारे नेता आज एक साथ हैं और सब मिलकर कांग्रेस पार्टी जीते, इसके लिए हम लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस बार जो पुराना मिथक है वो टूटेगा और कांग्रेस पार्टी को पिछले समय से ज़्यादा अधिकांश सीटें मिलेगी हमको। भारतीय जनता पार्टी जो है वो मोदी की गारंटी के दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। ये कह रहे हैं कि हमारे पास सबसे बड़ा चेहरा मोदी का है। आज ही उन्होंने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलते हुए 100 रुपये कम कर दिए एलपीजी पर, महिलाओं पर फोकस कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, 1200 रुपये बढ़ाकर 200 रुपया कम करना, 1000 में 100 रुपया कम कर देना। लोग तो 400 रुपये के जो सिलेंडर होता था उसको लोग याद करते हैं। तो आज मोदी जी की जो गारंटियां हैं वो पूरी गारंटियां फेल है। आपने देखा होगा जो चुनाव में जो वादे आदरणीय मोदी जी ने किए थे उन वादों को तो उन्होंने पूरा नहीं किया। तो लोग अब इस बात को समझ रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी अब फेल हो चुकी है और इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लोकसभा में बहुत सारी सीटें जीत के आएगी। अच्छा, 2018 में बम्पर जीत कांग्रेस को राज्य में मिली। 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो सिर्फ 2 सीटें आपको 11 में से मिल पाई। अब इस बार 2023 में आप लोगों को हार मिली है। इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, 2003 की बात आपने की है तो 2003 में आपने देखा होगा तीनों राज्यों में हम हारे थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इस बार भी हम हारे हैं, लेकिन 2004 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो केंद्र में हमारी सरकार बनी थी। तो इस बार भी वही इतिहास दोहराया जाएगा 2003 में जो हुआ था। बहुत शुभकामनाएं आपको। तो कुल मिलाकर शिव डहरिया जी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है और न सिर्फ अपनी जीत को लेकर बल्कि छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होगा, इस बात की उम्मीद भी कर रहे हैं। हितेश व्यास, IBC 24, रायपुर। तो शिव डहरिया की आप पहली प्रतिक्रिया सुन रहे थे और जांजगीर से शिव डहरिया होंगे और देखिए आमने सामने कांटे की टक्कर इस बार होने वाली है, वो भी हम आपको बता रहे। रूप कुमार चौधरी वर्सेस ताम्रध्वज साहू महासमुंद से। ये दोनों, हालांकि संजय जी कह रहे थे जो इनपुट एडिटर है कि ऐसा लग रहा है जैसे जबरदस्ती इन्हें महासमुंद भेजा गया हो। हालांकि साहू बाहुल्य क्षेत्र है महासमुंद, ऐसे में यहां पर कांटे की टक्कर होने वाली है। इस बार बीजेपी ने 9 नए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, 11 में से और 2 पुराने यानी कि रिपीट किया गया है। सांसद विजय बघेल और इसके साथ ही संतोष पांडे पर एक बार फिर से भरोसा जताया है बीजेपी ने, लेकिन 6 नए नामों का ऐलान कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। ताम्रध्वज साहू के सामने रूप कुमारी चौधरी महासमुंद से। इसी तरह दुर्ग की अगर बात की जाए तो दुर्ग में सांसद विजय बघेल वर्सेस राजेंद्र साहू। यहां पर भी ये कांटे की टक्कर, बेहद हाई प्रोफाइल सीट, क्योंकि राजनांदगांव की अगर बात की जाए तो एक ये भी हाई प्रोफाइल सीट होगा। मौजूदा सांसद संतोष पांडे और उनके सामने होंगे पूर्व सीएम भूपेश बघेल। ये भी एक हाई प्रोफाइल सीट होगी। राजनांदगांव का भी अब समीकरण साफ हो चुका है। कमलेश जांगड़े के सामने शिव डहरिया की पहली प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। उन्होंने यही यहां पर कह दिया है, दावा किया है कि इस बार हम जरूर जीतने वाले हैं जांजगीर चांपा की सीट। ये एससी के लिए तय होती है ये सीट। और कमलेश जांगड़े कोरबा, यहां पर महिला शक्ति देखने को मिल रही है। महिलाओं के बीच कांटे की टक्कर होगी, ज्योत्सना महंत वर्सेस सरोज पांडे। तो कोरबा जो ये सीट थी ये इससे पहले कांग्रेस के ही पास थी। ज्योत्सना महंत को इस बार रिपीट किया गया है, उनके सामने रहेंगी सरोज पांडे। सरगुजा से चिंतामणि महाराज जो कि पहले कांग्रेस के थे लेकिन अब भाजपा के हो गए। सरगुजा से चिंतामणि महाराज वर्सेस शशि सिंह। ये भी एक चौंकाने वाला नाम है, लेकिन देखिए ये जो नाम थे सबसे पहले IBC 24 ने ही आपको बताया था कि ये संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं और IBC 24 के इन्हीं नामों पर मुहर आज AICC ने भी लगा दी है। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, अब देखिए 6 सीटों पर समीकरण पूरी तरह से साफ हो गए हैं कि आमने सामने कांटे की टक्कर किनके बीच में होगी। आपको क्या लगता है कहां पर कांटे की टक्कर होगी और कहां पर एक तरफा बाजी कोई भी सियासी दल मार सकता है? देखिए आकांक्षा, अगर हम लोग बात करें तो कुछ सीटें ऐसी है जहां पे अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि थोड़ी टक्कर अच्छी तरह से होगी और वो एक सीट है राजनांदगांव की सीट जहां पे भूपेश बघेल चले गए हैं और वहां पर संतोष पांडे पुराने जो सांसद हैं वो वहां पर मौजूद हैं। और ऐसा लगता है कि चूंकि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री की कुर्सी से अभी उतरे हैं तो जाहिर है कि उनकी ताकत भी अच्छी है, पकड़ भी अच्छी है, पहुँच भी अच्छी है।
तमाम चीज़ें हैं उनके पक्ष में, तो वो वहाँ पर कड़ी टक्कर देंगे संतोष पांडे को, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर टक्कर वाली ही बात करें तो दुर्ग की सीट भी एक ज़ोरदार सीट है, जहाँ पर देखिए पिछली बार भूपेश बघेल पाटन से जब चुनाव लड़ रहे थे तो वहाँ पर विजय बघेल जी को उतारा गया था, सांसद हैं, वहाँ पर उतारा गया। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। लेकिन अगर उनके 2018 के नतीजे को देखें और 2023 के नतीजे को देखें तो पता चलता है कि भूपेश बघेल का ग्राफ गिरा और वोटर्स की संख्या लगभग 10,000 कम हुई। तो इसीलिए ये ज़रूरी था कि भूपेश बघेल दुर्ग से हटें और ऐसी जगह पे जाएं जो थोड़ा सेफ हो। और थोड़े सेफ की सीट अगर बात करें तो राजनांदगांव ये सीट थोड़ी भूपेश बघेल के लिए सेफ दिख रही है और दुर्ग थोड़ा कठिन हो जाता अगर भूपेश बघेल वहाँ उतरते। लेकिन अब वहाँ पर राजेंद्र साहू को लाया गया है, ताम्रध्वज साहू को हटा दिया गया है। ये थोड़ा सा साहू और जो कुर्मी जो वोटर्स हैं उनके बीच ये जरूर ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन थोड़ा टक्कर यहाँ कम होगी बनिस्बत राजनांदगांव के। और भूपेश बघेल अगर दुर्ग से उतरते तो एक टक्कर अलग ढंग की होती, ताम्रध्वज साहू वहाँ पर उतरते तो अलग टक्कर होती। इस बार थोड़ी दूसरी तरह की बात दिख रही है यहाँ पे। महासमुंद में रूप कुमार चौधरी, थोड़ा ऐसा लगा कांग्रेस को शायद कि इनको हराना आसान होगा, इसलिए उन्होंने वहाँ पर ताम्रध्वज साहू को भेजा है। ऐसी चर्चा थी कि ताम्रध्वज साहू बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे। संजय जी, सबसे बेहद दिलचस्प जो सीट हो जाती है वो रायपुर की भी हो जाती है, क्योंकि ब्रजमोहन अग्रवाल वर्सेस विकास उपाध्याय यहाँ पर रहेंगे। जनरल ये सीट है, लगातार जीतते आए हैं विधायक के पद के लिए ब्रजमोहन अग्रवाल, लेकिन इस बार विकास उपाध्याय को हार का सामना करना पड़ा था। तो कितना दिलचस्प आप देखते हैं रायपुर की अब सीट हो जाती है लोकसभा के लिए। आकांक्षा, आप लोग जो बात कर रहे थे शुरू में ही कि ये जो कांग्रेस की सूची जारी हुई है ये बहुत सोच समझ के और जो सबसे बेस्ट हो सकता था, जो बेस्ट उपलब्ध है, ये कहना चाहिए जो उपलब्ध हैं, जो लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे उनमें जो बेस्ट नाम थे उनका चयन हुआ है। और रायपुर से निश्चित रूप से विकास उपाध्याय एक अच्छा नाम कांग्रेस के अंदर है, क्योंकि अभी कांग्रेस में रायपुर के अंदर देखें तो बहुत ज़्यादा नाम ऐसे नहीं है जो इन महारथियों को टक्कर दे पाएँ जो बीजेपी के हैं। विकास उपाध्याय एकमात्र ऐसे प्रत्याशी हैं रायपुर के अंदर जिन्होंने एक पुराने मंत्री को, जो राजेश मुणत, जो अच्छे मजबूत दावेदार माने जाते थे, मजबूत कैंडिडेट माने जाते थे, उनको हराया था विकास उपाध्याय ने एक समय। इस बार हार गए थे लेकिन पिछली बार हराया था, तो वो एक अच्छा नाम हो सकता है विकास उपाध्याय। कांग्रेस के पास मुझे लगता है विकास उपाध्याय के अलावा कोई नाम फिलहाल ब्रजमोहन अग्रवाल से लड़ने के लिए तो नहीं है। ठीक है, आपसे और भी चर्चा करेंगे। संजय जी, आप बने रहिए हमारे साथ। जांजगीर चांपा से राजकुमार साहू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कोरबा से धीरज साहू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। धीरज, आपसे समझना चाहेंगे कोरबा का जरा सियासी समीकरण समझाइए। यहाँ पर महिला शक्ति के बीच में कांटे की टक्कर रहेगी। ज्योत्सना महंत जो पहले भी सांसद रह चुकी है और वर्सेस राज्यसभा सांसद सरोज पांडे। तो कितना दिलचस्प यहाँ का समीकरण हो जाता है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है और क्या समीकरण साधे एक बार फिर से ज्योत्सना महंत को यहाँ से उतार कर? देखिए, यहाँ पे जब बीजेपी ने यहाँ पे सरोज पांडे के नाम की घोषणा की तो उसके बाद से स्पष्ट हो गई थी कि यहाँ पे महिला होगी और जिसे आईबी समिति ने कहीं बात की और संभावित नाम बताया था कि ज्योत्सना महंत को कोरबा से टिकट मिल सकती है। इसके बाद में आज उसकी पुष्टि हो गई है और यहाँ पे काफी कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी विधानसभा की बात करें तो 8 विधानसभा जो कोरबा लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, जिसमें 6 विधानसभा पे भाजपा कब्जा है और जबकि 1 विधानसभा पे कांग्रेस का और 1 विधानसभा पे उनका कब्जा है। ऐसे में विधानसभा की बात की जाए तो बीजेपी ज्यादा मजबूत स्थिति मिलती है। जब वोट प्रतिशत की बात की जाए तो कांग्रेस बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। पिछले बार में यहाँ पे ज्योत्सना महंत चुनाव लड़ी थी, उसके बाद में 4 विधानसभा से बीजेपी की लीड मिली थी। उसके बावजूद ज्योत्सना महंत को 2 विधानसभा में ऐसी बड़ी लीड मिली कि 25,000 से अधिक वोटों से जीत गई थी। ज्योत्सना महंत लगातार क्षेत्र के दौरे कर रही है, साथ में सरोज पांडे को टिकट मिलने के बाद तो लगातार उनके दौरे कर रहे हैं। तो ज्योत्सना महंत का जो मजबूत गढ़ कहा जाता है वो रामपुर विधानसभा और बिल्कुल धीरज, बेहद दिलचस्प सियासी समीकरण यहाँ के हो गए। अब देखने वाली बात होगी कि जब मतदान होंगे तो फिर नारी शक्ति में से वंदन किसका किया जाता है। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी, राजकुमार साहू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन विजय बघेल क्या कह रहे हैं राजनांदगांव से भूपेश बघेल के लोकसभा उम्मीदवारी के बाद, आइए अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है वो तो बाजू खसक लिया, मैं क्या करूं। तो पहले भी हमारे कुछ पत्रकार साथी पूछे थे, जब शुरू में नाम चला था उनका नाचगांव से, तो मेरे से पूछे थे, मैं बोला भाई अब वहाँ कहाँ जा रहे हैं, अब अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि दुर्ग में लड़िए ना।
एक बार और माननीय ताराचंद जी से मुक्की खा चुके हैं, एक बार और हो जाए दो हाथ, तो यहाँ आइए, यहाँ पे लड़िए। इधर उधर जाने की क्या जरूरत है? वहाँ पे नहीं है क्या सक्षम लोग नांदगांव में?